सकती है। इसी गाजर में हम काली गाजर बना दी, जो ये दिख रही है ना आपको, ये नीचे लाल है, ये काली गाजर। इस गाजर की क्वालिटी 15 दिन तक ऐसी की ऐसी रहती है। आप ये रखोगे, कोई पंखा कूलर एसी की जरूरत है, फ्रिज की जरूरत नहीं है। 15 दिन है जैसी जैसे रह जाती है, उसके एक दाग भी नहीं होता। और खाने में आप सोचोगे कि इतनी बड़ी गाजर हम कैसे खा सकते हैं, लेकिन आप खाओगे तब ये सोचोगे हम बड़े बड़े हम पूरी एक नहीं खा गए इतनी बड़ी गाजर। तो आज जब हमने इतना बड़ा हम देखा कि मेरे ये सोच नहीं सकी, हम 4 मार्च से 18 मार्च तक राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के मेहमान के रूप में रहे थे। हमको राष्ट्रपति चिन्ह और मेडल दे के राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था अभी 18 मार्च को। तो बहुत बड़ी मेरी ये सोच होगी, मैंने सोचा कि हम सब कुछ कर सकते हैं महिला होने के नाते। और ये भी हम पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है। और जब हम आते जाते हैं तो हमारे गांव की महिला कहती आप क्या अहमदाबाद अकेले चले जाओगी, आप दिल्ली के अकेले चले जाओगे। तो इसलिए हम अकेले आते हैं, अकेले ही जाते हैं। और मेरे पति का फुल सपोर्ट है हमारे। वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के गेस्ट बन के 2 हफ्ते राष्ट्रपति भवन में रुक के आए। वो पहली महिला है कि जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की गेस्ट बन के रुक के आई है। तो सबसे बड़ा महिलाओं का अचीवमेंट हम बोल सकते हैं। हमें रही है। और फिर हमने इसी प्रकार से जैसे बाजरे पर किया था, तो बाजरे में हमें जो अपनी ऐसी संस्था चलती है, तो हमने बाजरे के ऊपर 1 लाख का पुरस्कार लेके आए थे बम्बई से। पूरे में 3 लाख रुपए मिले थे। थोड़ी रफ्तार तेज है तो बीच में भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि महिलाएं सारी आ जाए, सारी कुछ का सबका धंधा अलग अलग होता है। तो यही मेरी सोच है, अपने बच्चियों को आगे ले, अपनी जो नेगेटिव सोच है इसको दूर करें। और हम तो यही संदेश देते हैं कि सारी की सारी महिलाएं अपने आगे आकर कंधे से कंधे मिलाकर अपने देश को आगे ले जाएं। जय हिंद। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে পুরস্কার পাওয়া একজন নারী উদ্যোক্তা এবং সেই প্রথম নারী যে কিনা রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে যখন পুরস্কার নেয় পুরো 2 সপ্তাহ সেখানে অতিথি হিসেবে ছিল। সন্তোষ পাচার। তো দিদি দিদির শুরুটা অনেক কঠিনের ছিল। দিদি যখন শুরু করে উনি ওই ক্ষেত খামারের কাজই করতো বাড়িতে, কিন্তু তখন হয়তো উনি ওনার সংসারে অনেক ধরনের ক্রাইসিস ছিল, অভাব ছিল। তো এরপরে ওনাদের পরিবারের দরকার থেকে উনি শুরু করে অর্গানিক ফার্মিংই করতো, কিন্তু ওনার এলাকায় ওনার এটাকে কেউ তখন এটা সাপোর্ট করতো না। তারা বলতো যে এই চাষ এটা উৎপাদন করতেছে, এটাকেও খাবে না, এটা বাজারে গেলে বিক্রি হবে না। কিন্তু উনি তারপরেও অর্গানিক ফার্মিং করছে এবং উনি বার্মি কম্পোস্টের নাম শুনছেন আপনারা, ওই যে গোবর থেকে যে সার তৈরি করে, হ্যাঁ গোবর থেকে কেঁচো যে সার তৈরি করে সেই সার ব্যবহার করছে। তো উনি যখন এইগুলো করছে ওনাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকাতে ওনার ছবি আসছে, উনি যে কাজ করে এগুলো আসছে। উনি আস্তে আস্তে বুঝতে পারে যে উনি যে কাজটা করতেছে এটা অন্যদের থেকে আলাদা। এরপরে উনি বুঝতে পারে যে ওনার এই জিনিস এটা যারা লেখাপড়া করে, যারা একটু বোঝে তারা কিনবে, তারা জানে অর্গানিক প্রোডাক্টের, অর্গানিক যে শাকসবজি হয় এগুলোর ভ্যালু কিরকম। নর্মালি বাজারে যেটা 10 টাকায় বিক্রি হতো ওটা উনি হয়তো 17-18 টাকা কেজি বিক্রি করতো বিভিন্ন, এবং কাদের কাছে বিক্রি করতো। ওনার দেখেন উনি কিন্তু বাজারে গিয়ে এইভাবে যারা আমাদের মধ্যে যারা অন্য জিনিসপত্র কিনতেছে ওইভাবে না করে উনি কিন্তু ওনার ক্রেতা খুঁজে বের করছে। যারা চাকরি বাকরি করে তাদের ওখানে গিয়ে সেইটার মার্কেটিং করছে যে আমার এই প্রোডাক্টটা কেন আলাদা, আমি কোনো কেমিক্যাল সার ব্যবহার করতেছি না, কোনো হার্মফুল কোনো পেস্টিসাইডস বা যাই হোক এগুলো কিছু ব্যবহার করতেছি না। উনি এইগুলা করে কিন্তু নিজে মার্কেটিং করছে প্রোডাক্টের। এরপরে বেশি দামে উনি বিক্রিও করছে। এরপরে যখন উনি সৃষ্টির এখানে আসছে, ওনারা যে গাজরের একটা ইয়ে দেখলেন না, অনেক বড় বড় গাজর, এটাগুলো কিন্তু হাইব্রিড না, এগুলো কিন্তু ন্যাচারাল গুলোই উনি এই অর্গানিক সার দিয়ে এই ধরনের ইয়ে তৈরি করতে পারছে, এই ধরনের ফসল উৎপাদন করতেছে। আর একটা দেখুন
প্রতিষ্ঠান সবকিছুর জন্য উনি সৃষ্টি থেকে তো পুরস্কার পাইছে, রাষ্ট্রপতি থেকে পুরস্কার পাইছে, এনআইএফ মুম্বাই থেকে পুরস্কার পাইছে। তো ওনার অ্যাচিভমেন্ট আসলে অনেক। थैंक यू। अब गोधरा से मैडम आए, वो कुछ बताएंगे। उन्होंने बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ एक चीज है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर जो गवर्नमेंट में जाता है ना, तो एक फिक्स हो जाता है कि भाई मेरा काम है यही है तो मुझे यही करना है, बाकी कोई लेना देना। लेकिन मैडम ने क्या किया कि उनका काम के अलावा वहाँ के जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। और जब मैं पहली बार मिला तो भी मुझे उनको बोला कि यार मुझे महिलाओं के साथ रह के बहुत कुछ काम करना है, लेकिन लोग नहीं मिल रहे मुझे। तो अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और है बिहार से, ठीक है, और पंचमहाल एकदम ट्राइबल इलाका है, वहाँ रह के काम कर रहा है। कितना टफ है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं पंचमहाल का हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने काम किया, तो कुछ उनके एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। सृष्टि के सभी अधिकारी कर्मचारी और जितने भी यहाँ पे महिला उद्यमकारी लोग बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। আমি বাংলাদেশ থেকে আসা যত লোক আছেন সবার আমার খুব ভালো নমস্কার। আপনারা এসেছেন, এখানে দেখছি অনুবাদ হচ্ছে, আমি মাঝে মাঝে একটু বাংলা বলবো, তো অনুবাদের কোনো দরকার হবে না। রশ্মিদি যে হাসি দিচ্ছে तो मैं जैसा कि मेरा परिचय दिया, मैं सबसे पहले आपको मैं अपना पूरा नाम बताना चाहूँगी। मैं डॉक्टर कनकलता। अक्सर अपने नाम के साथ लोग मिस्टर, मिसेस या डॉक्टर नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि इस डॉक्टर की उपलब्धि एक महिला होने के नाते मैंने कैसे किया है, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैं बिहार की हूँ। एक बहन बिहार की बैठी थी और सबको जब उन्होंने बोला मुझे बहुत मज़ा आया। तो मेरी शादी हाई स्कूल पास करने से पहले हुई थी। मैंने 10वीं भी पास नहीं किया था तब मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मेरे अंदर का जो जज्बा था, আমার जो ভিতরে একটা চাহিদা ছিল कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं ये शादी हो गई तो बस मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। और इसमें मैं थैंक्स कहूँगी मेरे हस्बैंड का या मेरे सास का या मेरे ससुर का, तो जो थोड़ा मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे माँ का, मेरे पिताजी का। और मैं अक्सर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी और जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। छोटो वयस यदि ये हो तो वो अपराध घोषित हो जाता है। तो मैं अक्सर अपने पिताजी को बोलती थी आप जरा भी मुझे रोकेंगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी। तो वो बोलते थे नहीं मुझे तुम्हें नहीं रोकना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। ये मैं मजाक में करती थी, मुझे कोई कभी मना नहीं किया। और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो इसमें आप सोच सकते हैं शादी हो गई थी, ट्रेडिशनल फैमिली से थी, कभी कभी ससुराल में जाना पड़ता था। और कुदरत का जो तोहफा है ना वो भी मुझे मिल गया ग्रेजुएशन से पहले, मतलब मैं एक बच्चे की माँ बन गई। तो एक बच्चा मेरा ग्रेजुएशन से पहले हो गया। फिर लोगों को ऐसा लगा कि अब तो मेरी पढ़ाई गई, मेरा जो दौड़ है वो रुक जाएगी। लेकिन मैंने कहीं भी सांस नहीं लिया। मैं प्रेग्नेंट थी और आपको मैं बताऊं कि तब मेरा ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन चल रहा था। और जब मेरा 8 दिन का बच्चा था तब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम 8 घंटे खड़े होकर मैंने दिया। जब मैं ऐसे करते करते और जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे नौकरी लग गई। मैंने नौकरी ज्वाइन कर लिया। बच्चा, पढ़ाई और नौकरी में भी मैंने कभी बेईमानी नहीं की। बेईमानी में से पैसे कौड़ी का तो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मगर कभी काम से नहीं किया कि मैं एक महिला हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही डिफरेंट एकदम आलादा तो रास्ता मैंने लिया था। क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी महिलाएं ज़्यादा जाना नहीं चाहती क्योंकि वो ग्लैमरस जॉब नहीं होता है। कि अगर आपको खेतों में जाना है, ग्लैमर में जाना है, मतलब खेतों में जाना है तो आप उतनी ग्लैमरस नहीं हो सकते हैं, तो वो मेंटेन आप नहीं कर सकते। आपको धूप में जाना है, पसीना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो काम करना है और इन्हीं लोगों के बीच में करना है
जहाँ मेरी ज़रूरत है, क्योंकि शहर के लोग, शहर में बहुत लोग रहते हैं, काम करने के लिए होते हैं, पर गाँव तक नहीं पहुँचते हैं, स्पेशली किसानों के तक नहीं पहुँचते हैं। आज जब संतोष बहन बोल रही थी ना, तो मेरे अंदर में पुलक हो रही थी कि एक किसान महिला इतनी ऊंचाई तक पहुंची है, क्योंकि किसानों को इतना दूर तक जाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो मैंने वो रास्ता चुना। नहीं, मुझे टाइम बताना है ना, क्योंकि मैं शुरू हो जाती हूँ। वो मशीन तो मेरे पास है, लेकिन बंद होने वाला मशीन नहीं है। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ाई, ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स किया, 6 मंथ लीव विदाउट पे होकर, क्योंकि कभी भी मुझे नौकरी मिल गई तो मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ था, मुझे और पढ़ना था ताकि मैं और आगे काम कर सकूं। तो আমি 6 মাসের পয়সা ছেড়ে দিয়েছি সরকারের কাছে कि ना আমাকে आगे पढ़ते होगे, मतलब मैं पढ़ने के लिए 6 मंथ मैंने सैलरी नहीं लिया और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और मास्टर्स किया मैंने फर्स्ट क्लास से। उसके बाद मेरी जॉब में प्रमोशन हुई और मुझे बोला गया कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने बहुत सोचा, तो मैंने बोला मैं अंडमान जाना चाहती हूँ, अंडमान निकोबार। मुझे लगा कि वो बहुत रिमोट है, वहाँ पे शायद मैं बहुत कुछ अच्छा काम करूँ। मैं वहाँ गई और मुझे बहुत मौका मिला लोगों के साथ काम करने का, और विशेषकर जब सुनामी आई थी, सबको पता होगा, সবাই শুনেছেন সুনামি এসেছিল, অনেক নষ্টকারী সুনামি হয়েছিল, তো ওইখানে আমি ওখানে ছিলাম। और मैंने इतना काम, मतलब ये मैं अपनी तारीफ नहीं, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ मैंने काम किया, पानी में जाके लोगों को निकालना, उनके साथ काम करना, फिर से उनको रिहेबिलिटेशन करना, तो उसमें बहुत सारा काम किया। उस वक्त जो हमारे डीजी थे वो आए, उन्होंने मुझे देखा और मुझे पूछा कितने दिनों से हो, तो मैंने बोला कि 7 साल हो गए। तो ट्रांसफ़र चाहिए, अब जाना चाहते हो यहाँ से? मैंने बोला जिनसे मेरी रोजी रोटी है आज वो संकट में है, तो मैं ट्रांसफ़र ले लूँ सर? मैं तब ट्रांसफ़र लूँगी जब ये किसान अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तब मैं आपके पास आऊँगी और आप तब मुझे पहचान ले कि अब मुझे ज़रूरत है। लेकिन शायद वो ज़रूरत कभी नहीं आई और मैं कभी उनके पास नहीं गई, और मैं ऐसे काम करती गई, मेरा प्रमोशन हुआ और आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र की हेड हूँ। और तब मैंने पंचमहल ज्वाइन किया यहाँ पे, और यहाँ भी मेरे सामने ट्राइबल, और इस बीच में मैंने अंडमान की एक प्रिमिटिव ट्राइब है, पाशा निगुन एखनो ओरा कापड़ पड़े ना, किच्छु खेते जाने ना, मैंने रान्ना करते जाने ना, ओरा शुद्ध हंटर गैदर, शिकार करे, माछ धरे, तीर दिए माछ धरे, वो अभी भी हंटर गैदरर है। जैसे पाशा निगुन के कपड़े नहीं पहनते हैं, कुकिंग नहीं पता है उनको, घर नहीं होता है, जंगल में नोबेटिक घूमते रहते हैं, ऐसे लोग वहाँ पे, ऐसे आदिवासी हैं। मैंने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पीएचडी किया, मैं उनके साथ अंदर गई, क्योंकि मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम इतनी सुविधा संपन्न दुनिया में रह के भी इतनी तकलीफ में रहते हैं। जब हमारा पीरियड, हम बहने हैं तो थोड़ा बात कर, जब हमारा पीरियड होता है तो हम 4-5 दिन कितना अस्वस्थ महसूस करते हैं, कितनी असुविधा। जो लड़की कपड़ा ही नहीं पहनती है, हाउ कैन शी मैनेज, वो कैसे मैनेज करती है अपने आप को, ये क्यूरियोसिटी मुझे बहुत अंदर से होती थी। फिर मैं उनके साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हम तो बहुत पीछे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं वहाँ छोटी छोटी लड़कियों को पूछती थी कि तुम कैसे मैनेज करते हो इस चीज़ को, वो लैंग्वेज नहीं जानती थी, पर मैंने उनका लैंग्वेज सीखा। तो वो बताते थे जंगल में एक पेड़ है, वहाँ की दाल है वो कोरस होता है, छिद्र युक्त, स्पंज जैसे होता है, और उससे वो अपना जो मेंस्ट्रुअल जो उनका, उसको जो वो वाइप करके पोंछते रहते थे थोड़ी ऐसी बहुत यूनिक चीज़ थी जो मुझे वहाँ जानने को मिला। और फिर मैंने उन लोगों के बीच में काम किया तो मुझे लगा कि धरती पे काम करने की कोई कमी नहीं है और आपका काम करने में कोई हर्डल नहीं है, कोई बाधा व्यवधान नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। अभी मैं यहाँ पंचमहल में हूँ पिछले 7 साल से, और ये भी ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी लोग हैं। तो जो प्रिमिटिव हैं, जो एकदम पाषाण युगीन जिंदगी जो जी रहे हैं, उधर तो कोनो मुश्किल नहीं, क्योंकि वो जाने और कुछ जाने ना, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिना कपड़े के आपके सामने खड़े हैं। हम इतना लड़ते रहते हैं धर्म के लिए,
असभ्य। जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा हम असभ्य हैं, क्योंकि हम कितना लड़ते हैं, हर बात पे लड़ते हैं, गाय पे लड़ते हैं, बैल पे लड़ते हैं, कलर पे लड़ते हैं, खाने पे लड़ते हैं। तो लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि उनको जब मैं जाती थी अपने थीसिस के लिए, जब मैं स्टडी के लिए जाती थी तो मैं उनके लिए केला लेती थी, कोला नहीं देता। और मैं उनको लाइन से बिठाती थी कि तुम लोग ऐसे जाओ, बसो, लाइन से बैठ जाते थे। तो मैं उनको एक एक केला देती थी, क्योंकि बहुत सारे होते थे ना 30-40, तो मैं उनको एक एक केला देती थी। एक माँ के गोद में एक बच्चा सो रहा था, मैंने उसको 2 केला दिया, बस उसने नहीं लिया। तो मैंने बोला कि वो तुम्हारे बच्चे के लिए है। तो सोते हुए बच्चे का हाथ उसने ऐसे खोला और उसके ऊपर मैंने केला रखा, तब उसने एक्सेप्ट किया। मतलब ये घटना मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। अगर हमारा सभ्य इंसान में कहीं कुछ बढ़ता है, हम हाय तौबा मचा देते हैं, लेकिन उसने अपने हिस्सा के अलावा उसने नहीं लिया। मेरे लाख कहने के बावजूद भी उसने बच्चे के हाथ पे रखवाया। मतलब कितना, मतलब ये चीज क्या, इसको देख के मुझे लगा कि हम लोग सभ्य नहीं है। सभ्य तो वो है जिनको हम असभ्य कहते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था। हालांकि इसके एंटरप्रेन्योर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मानव मूल्य, वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ में थोड़ा डिस्कस कर रही थी। अब मैं जब यहाँ आई, मैंने यहाँ किसानों के बीच में काम करना शुरू किया। कमोबेश महिलाओं की स्थिति हर जगह मैंने एक जैसी ही देखी।